Assalamu alaikum. This is lecture 38 of Gender Issues in Psychology. In the last two lectures, we talked about two major killers of today. That is coronary heart disease, CHD, and cancer. In these lectures, in which we talked about these two diseases, we had a few things that were focused upon. One, we talked about the preventable nature of these diseases. That is, these diseases can be prevented and one can avoid having these diseases by adopting certain measures. Then we talked about the risk factor for both genders, the risk for males and for females. We talked about the inherent risk factors as well, and we saw that in certain diseases the risk is higher for men and in certain diseases the risk is higher for women. And certain types of cancer are specific to women and certain types of cancer are specific to men. And then we saw that since these diseases are preventable to a large extent, we can adopt the measures that can help in avoiding the development of these diseases. These measures are primarily based upon two approaches. One, utilizing the available health facilities, the screening facilities available, say for preventing breast cancer or for preventing cervical cancer. Regular mammography can be helpful and regular pap smear tests can be helpful. Of course, we cannot prevent these diseases by these screening facilities, but they can help us identify and detect these cancers at the very initial stage. At the same time, in case of cancer, we see that certain healthy lifestyles can help staying away from these diseases. Heart disease is to a great extent related to lifestyle. If people adopt healthy lifestyles, they do regular exercise, they eat wisely, and they do not smoke, then they can prevent coronary heart disease to a great extent. So, two measures can be adopted and they should be adopted, that is, utilizing the screening facilities and adopting healthy lifestyles. So, in summary, we can say that the major killers of today are preventable. All we need is regular exercise, wise eating and the use of screening facilities. आज के लेक्चर में हम इसी तरह के एक और मौजू के बारे में बात करेंगे. आज का मौजू एक ऐसी चीज़ के बारे में है, एक ऐसी चीज़ से मुतल्लिक है जो कि इंटरनेशनल कंसर्न का बायस है. दुनिया भर के ममालिक में इस हेल्थ कंडीशन को अहमियत दी जा रही है. इसके प्रिवेंशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स की जा रही हैं और मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए और क्योर के लिए नित नए तरीके दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज तक टू डेट नो क्योर हैज़ बीन फाउंड और एट लीस्ट nobody has declared that he or she has found a cure to this disease. Before we start our discussion on this topic, I would like to make one point, and that is the topic that we are going to discuss today is a sensitive topic to a great extent. But this topic is very important. And if a topic is sensitive, we cannot prevent, we cannot avoid, and we cannot postpone talking about it just because it is sensitive. All we should be doing is talk about it, but be careful that nobody is hurt. We should be careful that it doesn't cause problems for anybody. But it needs to be discussed because people have to be aware about it, because this is a part of health education. As we have said, the major killers today are primarily preventable. Some of these killers are inherited. They are a part of the genes of a person, but the greater contribution is made by the lifestyles of the person. So, today in our lecture, we are going to talk about
HIV and AIDS and the risk factors for men and women. If you have done a course in health psychology, or if you have been reading about health-related issues, then you must be familiar with HIV/AIDS and its nature. But we know and we have seen, and it's a common observation, and some survey results have also shown that even very highly educated people are not fully aware of the nature of the disease, the mode of transmission, and the ways of preventing this disease. तो आज के लेक्चर में हम अपना फोकस इन्हीं चीज़ों पे करेंगे. प्राइमरीली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, 1, and 2, both genders are at a risk. रिस्क मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है. हाँ, मर्दों के लिए रिस्क ज़्यादा है, औरतों के लिए रिस्क कम है. बट इट इज़ एन इशू, it is a matter of concern for the health scientists, the medical scientists, the social scientists, the health agencies and authorities, and governments, and the world at large. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HIV और AIDS से क्या मुराद है. यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है. अक्सर लोग HIV और AIDS को एक ही चीज़ समझते हैं. HIV और AIDS एक चीज़ नहीं है. HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स का मर्ज पैदा होता है. और ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जिसको HIV हो उसकी वफ़ात या उसकी मौत जो है एड्स ही की वजह से हो. बहुत से लोग HIV पॉजिटिव होने के बावजूद नेचुरल कॉजेज़ की वजह से इंतकाल कर जाते हैं. दे मे डाई ऑफ एक्सीडेंट्स एंड दे मे डाई ऑफ हार्ट डिजीज़ विदाउट एवर हैविंग डेवलप्ड फुल ब्लोन एड्स. Now, contraction of HIV or developing AIDS is something, it's a health problem that is totally, entirely lifestyle related. For some people, the risk is that they may develop it without ever indulging into behaviors that lead to AIDS. But in most cases, people develop AIDS or they catch HIV as a result of the behaviors that they indulge into, mainly the risky behaviors of all sorts. And we will see that the categories of people who are at a higher risk of HIV or AIDS, they are the people who indulge into different types of risk-involving behaviors. And there are many people who are very careful, but they may get to acquire this disease or contract this disease because they were in contact with or they were in a situation where the other people or the other person had HIV. For example, we know that some people catch HIV as a result of blood transfusion. इस तरह की सिचुएशन में जिसको HIV हुई उस ट्रांसफ्यूजन के नतीजे में उसका अपना कोई कसूर नहीं था. So, जैसे कि हमने शुरू में कहा था, it can be a sensitive topic, but it needs to be talked about because if we talk about it and if we educate people about it, then maybe we can save the lives of many people, maybe thousands of people, maybe millions. अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे तो ही लोगों की जान बचाई जा सकती है. और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में एड्स का रेट जो है खासी हद तक कंट्रोल किया गया है. ये तो नहीं हुआ कि उसकी लोग जो एड्स का शिकार थे वो उनकी तादाद बहुत कम हो गई हो हेल्थ एजुकेशन की वजह से, बिकॉज ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एक दफ़ा पैदा हो जाए तो उससे छुटकारा पाना नामुमकिन है, कम अज़ कम अभी तक. लेकिन उसके रेट में जो इजाफे की शरह थी वो कंट्रोल हो गई है. उसमें एक तरह का स्टेबल पॉइंट आ चुका है क्योंकि लोग इसके बारे में ज़्यादा आगाही रखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस डिज़ीज़ की नेचर क्या है, HIV और एड्स से क्या मुराद है. ये दो अल्फाज जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट डू दीज एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर इन फर्स्ट प्लेस. एंड देन आवर प्राइमरी कंसर्न इज द रिस्क फॉर जेंडर्स, gender differences in risk and development of these aspects of the disease,
the infection plus the full-blown AIDS. But before that, we need to talk about the nature of the disease. But first of all, what is HIV and what is AIDS and how are they different and how are they similar? HIV and AIDS. Most people use these terms or these abbreviations interchangeably. At times they say somebody has AIDS, at times they would say उस शख्स को HIV है, बगैर इस बात का अंदाज़ा किए हुए कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं लेकिन एक नहीं है. HIV or human immunodeficiency virus is the viral agent, a retrovirus. AIDS refers to acquired immune deficiency syndrome. AIDS is a disease, infectious in nature, that is caused by HIV. It is not necessary that everybody who is HIV positive will develop AIDS. In other words, an HIV positive person may die due to some other causes, for example an accident, without having developed AIDS. The person may not even be aware of the fact that he or she is HIV positive. So, HIV जो है वो वायरस है और उसके नतीजे में होने वाली बीमारी का नाम है एड्स. जैसा कि नाम से जाहिर है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी पैदा करने वाली वायरस. एड्स जो है एक्वायर्ड सिंड्रोम है. एक्वायर्ड का मतलब है जो हासिल किया जाता है कहीं और से. सिंड्रोम से मुराद है सिम्टम्स का एक मजमुआ. जब मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स जो हैं एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और एक शख्स पर इकट्ठे हमला कर दें, मुख्तलिफ फॉर्म्स में उसके ऊपर हमला कर दें, तो उस वक्त हम उसको सिंड्रोम कहते हैं. अगर एक अलामत हो कि किसी बीमारी की तो उसको हम सिम्टम कहते हैं, लेकिन अगर बहुत सी अलामात हों और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ अलामात एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं तो उसको सिंड्रोम कहा जाता है. ज़रूरी नहीं कि जिस शख्स को HIV हो, जैसे कि हमने भी पहले कहा था, उसको एड्स भी हो. इस बात का मतलब ये नहीं कि HIV पॉजिटिव शख्स जो है उसको कभी एड्स नहीं होगी. नो, दिस इज नॉट व्हाट वी मीन. व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन HIV पॉजिटिव पर्सन डाइज ऑफ एड्स. अगर वो तवील अरसा जिंदा रहेगा तो एड्स जो है पैदा हो जाएगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी उस शख्स को HIV हो लेकिन एड्स डेवलप ना हुई हो और उससे पहले ही उसका इंतकाल हो जाए. So the point that we are trying to make is that AIDS may take long, very long in developing. HIV may be there, it may take years, at times few years, at times as long as 10 years in turning into AIDS. People do not develop AIDS at the time when they contract HIV. It may take an HIV positive person 5 or even 10 years to turn into a PWA or person with AIDS. AIDS is a syndrome that is a collection of symptoms. Therefore, there is no single symptom or condition that characterizes AIDS. A patient with AIDS may develop any number of symptoms of a variety of conditions. दुनिया भर में 1980s के अवाइल तक, उनकी इब्तदा तक एड्स के बारे में कोई शख्स कोई ख़ास मालूमात नहीं रखता था. ऑफ कोर्स जो मेडिकल साइंटिस्ट या हेल्थ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो थे और जो लोग मोलेकुलर बायोलॉजी के रिसर्च में इन्वॉल्व थे या बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च में इन्वॉल्व थे, यकीनन उनके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी और होगी, लेकिन आम लोगों तक इसके बारे में कोई इल्म नहीं पहुंचा था. और फिर यकायक दुनिया में हर तरफ से इसके केसेस की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई. इब्तदा में तो लोग मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स के पास आते और उनका इलाज करने की कोशिश की जाती है और फिर ये देखा जाता है कि वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहे. इक्का दुक्का वाक़यात जब तक होते रहे तब तक डॉक्टर्स के लिए कोई इतना बड़ा कंसर्न का मैटर नहीं था. उनके ख्याल में एक मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स जो हैं कहीं से डेवलप हो गए हैं, एक नई तरह की वायरस है जो किसी तरह से ठीक नहीं हो रही, एंटीबायोटिक के ज़रिए उसको ठीक करने की कोशिश की जाती लेकिन कोई ख़ास असर ना होता. लेकिन रफ्ता रफ्ता जब मुख्तलिफ ममालिक से इसी तरह की
मालूमात आने लगी और फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आने लगी कि लोग इस तरह के सिम्टम्स के साथ उनके पास आ रहे हैं, तो फिर ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया. टुडे HIV and AIDS is a matter of international concern, and the main cause of this concern is the deadly nature of this disease, because nobody has survived till date after having AIDS. ऐसा नहीं हुआ कि किसी को AIDS हुई हो और वो हमेशा उसके साथ बहुत बरस जिंदा रहा हो. AIDS का इलाज मौजूद नहीं है, या ये भी हो सकता है कि उसका इलाज किसी ने तलाश कर लिया हो और दुनिया को उससे आगाह ना किया हो. लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ जहन में रखने की है, कि ये एक डिजीज़ है जो कि फुली लाइफस्टाइल रिलेटेड है, विच मीन्स इट इज़ प्रिवेंटेबल. और दूसरी बात ये कि ये एक डेडली डिजीज़ है. वंस अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स दिस डिजीज़, द ट्रीटमेंट इज इम्पॉसिबल. एज सेड अर्लियर, HIV is the virus that leads to AIDS. It is a retrovirus. Retroviruses replicate by injecting themselves into host cells and literally taking over the genetic workings of these cells. They can then produce virus particles that infect new cells. After HIV enters the bloodstream, it invades the T cells, incorporates its genetic material into the cells, and then starts destroying cells' ability to function. तो HIV जो वायरस है, इसका मेन टारगेट क्या है? टी सेल्स. टी सेल्स वो सेल्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. HIV एक रेट्रोवायरस है. रेट्रोवायरस से मुराद ऐसी वायरस है, और आपने अक्सर इन्फेक्शन के और वायरस के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे और सुने भी होंगे. रेट्रोवायरस से मुराद है ऐसी वायरस जो कि सेल्स के अंदर घुस जाती है, दाखिल हो जाती है, बिल्कुल जिस तरह से कोई चीज़ इंजेक्ट कर दी जाती है, और एक दफ़ा उसमें एंटर होने के बाद उसके तमाम जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी डिस्टॉर्ट कर देती है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करती है. और वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस हद तक टेक ओवर कर लेती है कि सेल्स जो है अपना असल फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए मज़ीद कोई मदद नहीं कर पाते. यानी जो उनका असल मकसद था कि इम्यून सिस्टम को मजबूत रखा जाए और किसी भी बीमारी के अगेंस्ट डिफेंस किया जाए बॉडी का, अब वो टी सेल्स वो फंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया है HIV की वायरस ने. टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकग्नाइजिंग harmful substances in the body and for attacking such cells, in part by releasing NK cells. Although HIV is able to stay in the body in a latent and dormant state, it gradually starts replicating itself and in the process begins destroying the T cells. HIV की वायरस जब इन सेल्स में, T सेल्स में दाखिल होती है, तो बहुत अरसे तक वो डोमेंट रहती है या लेटेंट रहती है, यानी सोई हुई और खुफ्ता हालत में मौजूद रहती है. मौजूद वहीं रहती है, लेकिन वो उस वक्त एक्टिव नहीं होती. लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जो है वो अपनी एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में बाकी के सेल भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं. और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आती है कि जब वायरस जो है इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर होकर उसका कतई कोई सामना नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में कोई मामूली से मामूली इन्फेक्शन भी जो है उस शख्स के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. In simple terms, HIV damages and destroys the cells responsible for the body's immune system, robbing it of the defense against infections. As a consequence, even the least serious infections can do a great harm to the victim. And that is the stage when the person is said to have developed AIDS. तो जब एक शख्स के साथ ऐसा हो कि उसने HIV कॉन्ट्रैक्ट कर ली, कुछ अर्से तक वो डोमेंट रही, सोई हुई रही, इनएक्टिव रही, और उसके बाद फिर उसने एक एक्टिविटी इख्तियार कर ली और उसने बड़ी एक्टिव तरीके से बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बर्बाद कर दिया. और उस वक्त जब बॉडी किसी भी इन्फेक्शन के नतीजे में तबाह बर्बाद हो सकती है, ये वो स्टेज है जब उस फर्द की के बारे में हम कह सकते हैं कि उसने एड्स
एक्वायर कर ली है या एड्स डेवलप कर ली है, जिसका मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए कि पहली बात तो ये कि वो सिम्टम्स क्या हैं जिनके नतीजे में हमें ये मालूम हो सकता है कि HIV है इस शख्स को या एड्स शख्स में डेवलप हो चुकी है। और उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से लोग जो है उनमें ये वायरस दाखिल होती है और किस तरह से वो एड्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और जेंडर के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए क्या रिस्क इसके बारे में पाया जाता है। द कोर्स ऑफ HIV एड्स, यानी वो क्या रास्ता है जो HIV इख्तियार करती है एड्स तक पहुंचने के लिए। जैसे कि हमने अभी कहा था कि बहुत अरसे तक, और ये अरसा जो है 5 बरस से लेकर 10 बरस तक पर मुहित हो सकता है। ये तमाम फासला जो है, ये तमाम वक्फा जो है, इस दौरान इंसान के साथ क्या होता है जब एक दफ़ा वो HIV कॉन्ट्रैक्ट कर ले। As already said, HIV may take quite long in turning into AIDS. How long it takes depends upon the condition of the body and its immune system. There are a number of stages that the body goes through from HIV to AIDS. मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने एड्स के कोर्स के बारे में या एड्स के रास्ते के बारे में या एड्स के सफ़र के बारे में रिसर्च की है, और इस वक्त जो 1980 की दहाई जो है तब से लेके अब तक जो बहुत ज़्यादा रिसर्च दुनिया भर के तमाम ममालिक में की गई, उसके बाद कम से कम ये देखा जा सकता है और बगैर किसी शक के कहा जा सकता है कि एड्स के कोर्स को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल माइल्ड स्टेज से लेके फुल ब्लोन एड्स की स्टेज तक। स्टेज 1, there are no clear-cut symptoms. Within about a week after infection, symptoms like sore throat, fever, skin rash, headache may be experienced. Usually mild symptoms are experienced. This stage may last for 1 to 8 weeks. बिल्कुल इब्तदाई स्टेज या पहली स्टेज वो है जब एक शख्स ने HIV कॉन्ट्रैक्ट कर ली। इस दौरान हो सकता है उसको मालूम भी ना हो कि उसने इसको अपनी बॉडी में एक्वायर कर लिया है, या ये भी हो सकता है कि उसको शक हो। इस स्टेज के ऊपर कोई ख़ास सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, अलबत्ता ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं जैसे किसी भी शख्स को मामूली गला ख़राब होने की शिकायत होती है, गला ख़राब हो गया, हल्का सा बुखार चढ़ गया, और ये सिम्टम्स जो हैं कुछ दिन कुछ रोज़ रहने के बाद जो है गायब हो जाते हैं बहुत लंबे अरसे तक। स्टेज 2, लेटेंट पीरियड। द लेटेंट पीरियड may last for as long as 10 years. During this stage, the victim may remain asymptomatic or may experience minimal symptoms. Stage 2, latent period है, यानी ऐसा पीरियड जिसके अंदर HIV जो है और उसके असरात जो हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं और कोई ख़ास सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, और अक्सर सूरतों में तो कोई भी सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते। ये अरसा जो है जैसे कि हमने पहले कहा था कुछ बरसों पर भी मुहित हो सकता है। Stage 3, at this stage a cluster or group of specific symptoms is typically developed. For example, painful skin rash, fever, fatigue, swollen lymph nodes, night sweats, loss of appetite, persistent diarrhea, weight loss and white spots in the mouth. स्टेज 3 के ऊपर सिम्टम्स डेवलप होना और ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और यूँ तो बहुत से सिम्टम्स हो सकते हैं क्योंकि हमने शुरू में कहा था ये वो वायरस है जो कि इंसान के इम्यून सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देती है, और उसकी तबाही और बर्बादी के नतीजे में कोई भी इन्फेक्शन हो वो HIV पॉजिटिव शख्स के लिए एक जानलेवा चीज़ हो सकती है। यूजुअली जो सिम्टम्स इस स्टेज के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू होते हैं उसमें तकलीफ दे किस्म के स्किन रैशेस हो सकते हैं, या मुंह में वाइट स्पॉट्स हो गए, फ्लू बहुत से लोगों को हो जाता है, नज़ले की शिकायत बहुत रहने लगती है। लेकिन एक दो सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा एड्स के केसेस में और HIV पॉजिटिव लेटर स्टेज के मरीजों में दिखाई देते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट डायरिया, उनका पेट मुसलसल ख़राब रहता है, पेट में उनको दर्द रह सकता है, कोई भी किसी भी तरह की ग़िज़ा उनको हज़म करने में मुश्किल पेश आती है। इसके साथ साथ बुखार और थकावट का एहसास, ये भी इस स्टेज के सिम्टम्स हैं। और फिर इसके बाद सबसे सीरियस स्टेज, स्टेज 4। स्टेज 4, द इम्यून सिस्टम इज अनएबल टू कोप विद और फाइट ऑफ दीज इन्फेक्शंस। द T cell count drops down to 200 or less
per cubic millimeter of blood, as opposed to the normal count of 1000 per cubic millimeter. This is the stage of full-blown AIDS. तो ये वो स्टेज है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम या उसकी इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ बिल्कुल आखिरी कमज़ोर और कुछ ना कर सकने के काबिल एक चीज़ बन के रह जाती है। इसकी एक अलामत ये है कि अगर उनका टेस्ट किया जाए, ब्लड टेस्ट किया जाए, तो एक नॉर्मल शख्स की इम्यूनिटी के से मुतल्लिक जो सेल्स हैं, टी सेल्स जो हैं, वो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 1000 का काउंट होता है, जबकि एड्स के पेशेंट में ये काउंट 200 रह जाता है, यानी कि 5 गुना कम हो चुकी है वो तमाम की तमाम इम्यूनिटी, या हम उसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है इम्यूनिटी का लेवल। आखिर लोगों को किस तरह से मालूम हो? एड्स जो हमने कहा कि फुल ब्लोन एड्स तो 4th स्टेज में होती है एंड इट मे टेक 5 to 10 years। उससे पहले शुरू में भी कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं। पहली स्टेज में जैसा कि हमने कहा कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं और जिसको इंसान किसी भी आम इन्फेक्शन के सिम्टम्स समझ सकता है, और क्योंकि फिर उसके बाद वो लेटेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है और ये सिम्टम्स दोबारा ज़ाहिर नहीं होते, तो लोग बहुत बेफिक्री में होते हैं कि उनको कोई भी आर्जा लाहिक नहीं हुआ। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर किसी भी शख्स को ये शक हो कि उसके लिए किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से HIV का रिस्क है, तो अब आज स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, तमाम बड़े शहरों में और बाज़ छोटे शहरों में भी, गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और NGOs के लेवल के ऊपर भी स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। HIV स्क्रीनिंग होती है, HIV का टेस्ट किया जाता है। ये एक आसान टेस्ट है। शुरू में इसकी रिपोर्ट आने में ज़्यादा दिन लग जाया करते थे, लेकिन अब वो इंतज़ार का वक्फा भी जो है बहुत कम हो के रह गया है। सो एहतियात का तकाजा ये है कि अगर किसी शख्स को ये ख्याल हो या ये शायबा भी हो कि वो HIV पॉजिटिव होने के रिस्क पर है, तो उसको चाहिए कि अपनी ब्लड स्क्रीनिंग करवा ले। अब देखते हैं कि HIV और एड्स के सिम्टम्स क्या हैं। HIV के सिम्टम्स, जैसा कि हमने पहले कहा था, कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं है। इब्तदाई 8 हफ्तों में कुछ माइल्ड से सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं और उसके बाद वो सिम्टम्स गायब हो जाते हैं और इंसान को मालूम भी नहीं होता कि ये किसी ख़ास बीमारी की अलामत है। ज़्यादा नुमायाँ, ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स जो हैं वो एड्स की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, और जैसा कि हमने कहा था, एड्स एक सिंड्रोम है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स जो हैं इंसान में ज़ाहिर होते हैं, मुख्तलिफ तरह के असरात दिखाते हैं, बाज़ औक़ात एक एक करके और बाज़ औक़ात इकट्ठे। फुल ब्लोन एड्स इज़ मार्क्ड बाय अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। A number of opportunistic infections may attack the sufferer. These infections may involve the gastrointestinal tract, lungs, liver, bones, nervous system, and brain. Symptoms like general fatigue, greater weight loss, dry cough, shortness of breath, fever, purplish bumps on the skin, for example, Kaposi's sarcoma, and AIDS-related dementia. The symptoms can be divided into 3 categories. A. Opportunistic infections. B. Opportunistic tumors. C. HIV-related encephalopathy. तो एड्स के सिम्टम्स, जैसे कि हमने कहा, मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं और मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स के एक जमघटे की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें आम तौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, ना उतरने वाला बुखार, इन्फेक्शंस, और अभी हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड अपॉर्चुनिस्टिक ट्यूमर्स। ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसे ट्यूमर्स जिनकी अदरवाइज पैदा होने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन उनको जो ही अपॉर्चुनिटी मिली कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, उनका अटैक जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और बॉडी उनसे मुतासिर हो गई। तो जो कॉमनली नोन सिम्टम्स हैं और जो कॉमनली नोन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, उसमें हम देखते हैं कि निमोनिया की शिकायत, इन्फ्लुएंजा की शिकायत, पेट ख़राब होने की, डायरिया, gastrointestinal infections of other types, these things are much more common than any other symptoms. उसको थोड़ी सी भी सर्दी जो है वो उसके लिए, एड्स के पेशेंट के लिए निमोनिया का बायस हो सकती है।
इसी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक ट्यूमर्स की सूरत में इस तरह के ट्यूमर्स उसकी बॉडी में जाहिर हो सकते हैं जो कि आम तौर पे आम हालात में लोगों में जाहिर नहीं होते। जैसे कि हमने कहा कि कुछ तरह का सरकोमा जाहिर हो सकता है, कुछ तरह के कैंसर टाइप ट्यूमर जो हैं वो जाहिर हो सकते हैं। लिम्फ नोड्स जो हैं उनमें स्वेलिंग जो है वो जाहिर हो सकती है। गला ख़राब रहने की शिकायत आम हो जाती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एड्स का पेशेंट जो है उसकी सर्वाइवल या लॉन्गेविटी या उसका जो है इन सिम्टम्स से महफूज रहना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि उसको एक एयर टाइट कमरे में, जिसको जो बिल्कुल जर्म फ्री हो, बैक्टीरिया फ्री हो और एयर कंडीशन हो, और मैं किसी तरह से उसमें कोई बाहर से पोल्यूटेड हवा आने का इम्कान ना हो, तो शायद वो इन्फेक्शन से बच सके। बट इवन देन व्हेन द पर्सन ईट्स हिज और हर फूड द प्रॉब्लम्स स्टार्ट अराइजिंग, क्योंकि निज़ाम हज़म जो है वो भी मुतासर हो चुका होता है। इसी तरह से एंसेफेलोपैथी जो है वो ब्रेन रिलेटेड जो है बीमारियां, प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी देखा गया है कि उसमें एड्स के पेशेंट में आ जाते हैं। डिमेंशिया जो है एड्स रिलेटेड वो भी एक बड़ा सिम्टम है। और आज तक एड्स का कोई ऐसा नोन केस नहीं है जो इस स्टेज पर पहुंचने के बाद जो है वापस लौट के आ सका हो। इसका रास्ता जो है इस स्टेज पर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की डेथ की सूरत में जाहिर होता है। बार बार हम इस बीमारी के डेडली होने का जिक्र कर रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि उसकी मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब मौत नहीं भी वाक़या हो सकती। एक जानिब हम कह रहे हैं कि सिम्टम्स बहुत सीरियस हैं, बहुत शदीद हैं, बहुत तकलीफ हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम सिम्टम्स उस वक्त हैं जब कोई शख्स HIV कॉन्ट्रैक्ट कर ले और एड्स डेवलप हो जाए। बट इफ अ पर्सन अडॉप्ट्स लाइफस्टाइल्स which are not risky at all, which are neat and clean lifestyles, then the person has no worries. That person does not have to worry about anything because he will remain symptom free, he will remain AIDS free, he will remain HIV free. दूसरी अहम चीज़, बल्कि यूँ कहना चाहिए दर हकीकत सबसे अहम चीज़ और पहली अहम चीज़ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स How is HIV transmitted? वो क्या चीज़ें हैं? हमने बार बार कहा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। वो क्या लाइफस्टाइल्स हैं जिसके नतीजे में, और वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके नतीजे में HIV पैदा हो सकती है और जिसके नतीजे में एक जानलेवा मर्ज, एक डेडली डिजीज़ एड्स पैदा होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन 1. होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। 2. blood transfusion. 3. IV or intravenous drug use when infected syringes are used. 4. From HIV positive mother to baby during the birth process. 5. In rare cases through infected mother's milk to infant. तो एक चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे आम नॉलेज के लिए भी और ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी जो चीज़ मालूम होनी चाहिए, 1. it is preventable. 2. if we know about the mode of transmission, then it is easy to prevent it. So, and that is why I said we have to talk about it, and we cannot postpone talking about it just because we are sensitive about it. तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांसमिट कैसे होती है। रिसर्च जो दुनिया भर में की जाने वाली रिसर्च है उससे बात जाहिर हुई कि हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है उसका एक बड़ा बायस है। दूसरे जो लोग ड्रग यूज़ करते हैं, इंट्रावीनस ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और इन्फेक्टेड सिरिंजेस, और हम जानते हैं कि ड्रग अब्यूज़र्स जो हैं एक ही सिरिंज बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वही सिरिंज जब दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी वो इन्फेक्शन चला जाता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्ट्रेट अवे एक इन्फेक्टेड शख्स का इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो एक हेल्दी शख्स को लगा दिया गया तो खुद ब खुद उसकी ब्लड स्ट्रीम में वो इन्फेक्शन या वो वायरस दाखिल हो गया है। एंड दिस इज़ व्हाट वी मेंट व्हेन वी सेड दैट मेनी पीपल मे डेवलप HIV और AIDS
विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर ओन। फिर इसी तरह की एक और सिचुएशन ये है कि जब इन्फेक्टेड मदर के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो जो डिलीवरी के प्रोसीजर्स हॉस्पिटल में परफॉर्म किए जाते हैं जिसके अंदर ब्लड जो है उसका एक्सचेंज हो सकता है, उसके नतीजे में बच्चे जो हैं पैदाइश के वक्त से ही HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। अब फिर कुछ रिसर्च ऐसी भी है कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं HIV पॉजिटिव या एड्स वाली मदर्स के, उनमें भी ये ट्रांसमिट कर जाती है। मतलब मदर्स मिल्क के ज़रिए बच्चे में जो है HIV की जो इन्फेक्शन है इसके बारे में खासी रिसर्चेस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिसर्चेस जो है इस बात को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। अर्ली 1990s में और लेट 1980s में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। आज इस वक्त जो है जब हम एड्स के कैरियर्स की बात करते हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो कैरी करती हैं इन्फेक्शन को जिसके नतीजे में एड्स ज़ाहिर होती है, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में लोग कंफर्म्ड ओपिनियन रखते हैं। द मेन कैरियर्स, बॉडीली फ्लूइड्स, primarily blood and semen. The Centers for Disease Control and Prevention, 1996, in the US, data presented the cases of AIDS by mode of transmission in the world and the US. अमेरिका में Centers for AIDS Control ने इस सिलसिले में काफ़ी डेटा जो है वो इकट्ठा किया, इसके ऊपर खासी रिसर्च की और उन्होंने ये बताने के लिए कि एड्स के कैरियर्स और एड्स के जो कॉजेज़ जो हैं वो दुनिया भर में किस तरह से पाए जाते हैं, उनकी शरह क्या है, और फिर ये कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में इसकी शरह क्या है, उसको उन्होंने कंपेयर किया। अभी आप टेबल देखेंगे जिससे आपको मालूम होगा कि कई कॉजेज़ की सूरत में दुनिया भर के डेटा में और सिर्फ अमेरिका के डेटा में खासा इख्तलाफ पाया जाता है। यानी कोई एक चीज़ या एक रिस्क फैक्टर अगर दुनिया भर में ज़्यादा कॉमन है तो शायद अमेरिका में वो उतना कॉमन नहीं है, और जो चीज़ अमेरिका में बुनियादी तौर पर HIV और एड्स का बायस बनती है वो शायद दुनिया के दूसरे ममालिक में नहीं पाई जाती। हेट्रोसेक्सुअल, इन द वर्ल्ड इट इज़ 70 to 75%, in the US it is 8%. Homosexual in the world is 5 to 10%, and in the US it is 51%. Homosexual and IV drug use, in the world there is no information on that, no figures at the time when it was prepared, and in the US it is 7%. IV drug use in the world it is 5 to 10%, and in the US it is 25%. Blood transfusion in the world 3 to 5%, and in the US 1%. Others in the world 0 to 17%, in the US 8%. तो हम ये देखते हैं कि कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे हैं जो कि US में ज़्यादा कॉमन है, कुछ दुनिया भर के दूसरे ममालिक में। दुनिया भर के जो ममालिक का अगर डेटा लिया जाए तो हेट्रोसेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैल रही है, जबकि अमेरिका में इसका जो एक बुनियादी सोर्स जो इसकी है वो होमोसेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है। IV डिज़ीज़ जो IV ड्रग यूज़ जो है उसके ज़रिए जो एड्स या HIV का ख़तरा जो है या रिस्क जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा हद तक पाया जाता है, दुनिया में दूसरे ममालिक में कम। और ये चीज़ अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो कोई इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में तो शायद इंट्रावीनस ड्रग इस्तेमाल करने का लोगों में इतना रिवाज नहीं है, जबकि लोग किसी और तरह की ड्रग्स जो हैं जो आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मगरबी मुआशरे में और ख़ास तौर पर अमेरिका में IV ड्रग यूज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और तरह के मुनशियात जो हैं वो उस तरह से कॉमनली अवेलेबल नहीं हैं कि लोग उनको इस्तेमाल कर सकें और बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करें। तो हम ये देखते हैं कि जो तमाम के तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं तकरीबन तमाम ममालिक में पाए जाते हैं, अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क है कि एक रिस्क फैक्टर किसी एक रीजन में ज़्यादा है और दूसरा किसी और रीजन में। जेंडर एंड HIV एड्स रिस्क, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, जब हम HIV और एड्स के इशू को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं एज अ जेंडर इशू, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बायस है परेशानी का, बायस है तकलीफ़ का, पेन का, डिस्कम्फर्ट का, और मुआशरे के लिए एक तरह के इनकन्वीनियंट
सूरत हाल का, ऐसी सूरत हाल जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए, जिसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, प्रिवेंट किया जाना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल या प्रिवेंट नहीं हो रही। जेंडर डिफरेंसेस HIV और एड्स में पाए जाते हैं। Both can be affected, men as well as women, but the risk is different. Although many segments of the population are at a higher risk than others, we will be discussing only gender differences in this regard. However, research shows that 3 variables are important in the likelihood of HIV infection and developing AIDS: age, gender and socioeconomic background. जैसा कि अभी हम स्लाइड पे देख रहे थे, एज और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है और जेंडर, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। यानी ये वो 3 कैटेगरीज हैं जो कि हायर रिस्क पर हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। किसी शख्स की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें डिटर्मिन करेंगी कि आया वो उन बिहेवियर्स में इंडल्ज कर रहा है जिससे HIV हो सकती है या कि नहीं। The Centers for Disease Control in the US described common routes of transmission of HIV for men and women. Looking at their data, one can see how modes of transmission vary for men and for women. Modes of transmission for men: homosexual contact 57.3%, injecting drug use 21.2%, homosexual contact and injecting drug use 7.6%, heterosexual contact 4.3%, transfusion 0.8%, undetermined 8%. Modes of transmission for women: injecting drug use 41.5%, heterosexual contact 39.4%, transfusion 3%, undetermined 15.9%. The most prominent difference here is that only 4.3% of men contract HIV/AIDS from women, whereas 39.4% women get infected by men. Male to female transmission is 8 times more likely than female to male transmission. So, हमने कंपेयर किया कि दोनों जेंडर्स के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और रिस्क की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और हमने देखा कि मेल्स की सूरत में कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स की सूरत में कुछ और। हाउएवर द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV from the person of the opposite gender is higher in females. It is 8 times higher than the risk that men have of contracting AIDS from the person of opposite gender. In the late 1990s, it was observed that the number of HIV positive or AIDS-infected women was on the increase. The rate is even higher in minority women in the US. According to the late 1990s figures, out of the adult and adolescent AIDS cases reported to Centers for Disease Control, 20% were women. Black and Hispanic women constituted 73% of all AIDS cases in women, whereas in the entire population, they comprise only 19%. अगर आपको याद हो, हमने पिछले चंद एक लेक्चर्स में भी ये बात की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एम्पिरिकल एविडेंस ऐसी है, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में डेटा हमारे पास अपने हाथ से, अपने माहौल से नहीं मिल रहा। उसके लिए हम दूसरे ममालिक से हासिल की गई मालूमात आप तक पहुंचाते हैं और उनको हम रिलायबल भी समझते हैं क्योंकि वो ब्रॉड बेस्ड रिसर्चेस हैं। उसी से हम अपने कल्चर के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। इसी वजह से हम एड्स के बारे में भी अभी तक जो मालूमात आपको दे रहे हैं वो ज़्यादातर दूसरे कल्चर से ली गई हैं। हमारे यहाँ एड्स के पेशेंट्स की क्या तादाद है, इसके बारे में कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चंद हज़ार और कुछ क्लेम करते हैं कि 80,000, जबकि दुनिया के कुछ ममालिक में, हमारे हमसाया ममालिक में एड्स के पेशेंट्स की तादाद लाखों में। इसलिए हम देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो हायर रिस्क पर हैं। As compared to women, men are at a higher risk. In case of Pakistan too, most reported cases are males. The main reason for their high risk
as in case of HIV/AIDS in general, is indulgence into risky behaviors. In case of young adults, most of the infected persons are men. The rate is generally lower in people above 50 years of age, and they are less likely to be infected than young adults. But if the 50+ people get infected, they tend to develop AIDS more rapidly and to get more opportunistic infections. So, मर्द ज़्यादा रिस्क पर हैं, इसके साथ साथ यंगर मर्द ज़्यादा रिस्क पे हैं, और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो भी इसमें मैटर करती है. The case of HIV/AIDS, some facts. There are 38 million people living with HIV/AIDS worldwide. 5 million people are newly infected every year. Of these, 800,000 are children. The rate of HIV infection is the highest in the 20 to 45 years olds than any other age group. The HIV infection rate is 3 times higher in men than in women. Ever since the beginning of the epidemic, males constituted more than 80% of all AIDS cases. तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितने वसी पैमाने पर एड्स या HIV का रिस्क पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा कौन लोग रिस्क पर हैं? बच्चे और नौजवान. बच्चे हम जानते हैं कि वो किसी तरह के रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज नहीं करते. बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं. और दूसरी जानिब दूसरा बड़ा रिस्क ग्रुप जो है वो है नौजवान. वो नौजवान जो अपने 20s में है. इसलिए इतना ज़रूरी है इसके बारे में बात करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे हम तवक्कुआत रखते हैं अपने माशरे की बेहतरी की, एक अच्छे फ्यूचर की, एक अच्छे मुस्तकबिल की, एक अच्छी बाइज़्ज़त ज़िंदगी की, अपनी नेशन के लिए. अगर हमारे बच्चे या किसी भी माशरे में पैदा होने वाले बच्चे इस तरह की बीमारियों का शिकार हों, या हमारे नौजवान क्रिएटिव एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बजाय, प्रोडक्टिव एबिलिटी का इस्तेमाल करने की बजाय, तालीम हासिल करके बड़े साइंटिस्ट बनने की बजाय या थिंकर्स बनने के बजाय HIV और एड्स का शिकार होंगे, तो क्या हमारे लिए ये कोई अच्छी बात होगी? यकीनन ये एक बहुत बुरी बात होगी. और यही वजह है जिसके लिए हमें अपने बच्चों को इससे आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं, अगर उनको इन चीज़ों के बारे में मालूम होगा तो वो यकीनन उन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे जो कि उनके लिए एक ख़तरनाक नतीजे का बायस हो सकती हैं. सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? व्हाट नीड्स टू बी डन? Health education and awareness campaigns about the nature, risk factors, causes and symptoms of HIV/AIDS, like use of syringes and blood transfusion. Education for avoiding risky and harmful behaviors. Encouraging people to adopt careful lifestyles and safer sexual practices. Educating infected women about the significance of avoiding pregnancy. Providing easily accessible screening facilities and health education programs for young adults. तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है. और ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, ये अवेयरनेस और आगाही कैसे पैदा कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों से बात करें. हमें चाहिए कि मीडिया के ज़रिए उनको इसके लिए मैसेज दें. हमें चाहिए कि जो चीज़ें वो पढ़ते हैं, जो चीज़ें वो देखते हैं, जो चीज़ें उनके लिए दिलचस्पी का बायस है, उनके ज़रिए उनको मैसेजेस दिए जाएं. और हेल्थ एजुकेशन यकीनन तालीम का भी हिस्सा होना चाहिए. किसी ऐसी स्टेज के ऊपर जब हम बच्चों से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तवक्को कर सकते हैं, उस वक्त हमें इन चीज़ों के बारे में उनको ज़रूर बताना चाहिए. उनको बताना चाहिए कि हेल्दी बिहेवियर्स क्या हैं और रिस्की बिहेवियर्स क्या हैं. छोटा रिस्क हो तो उस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है. बच्चे को शायद माफ़ भी किया जा सकता है, बच्चे को इजाज़त भी दी जा सकती है कि थोड़ा सा रिस्की बिहेवियर जो है वो इख्तियार कर ले. अगर वो घर की ग्राउंड में एक पहिए पर बाइसिकल चलाना चाहता है तो ये भी रिस्की बिहेवियर है, लेकिन इसकी इजाज़त दी जा सकती है. लेकिन अगर एक रिस्की बिहेवियर बहुत सख्त नताइज का हामिल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में एम्बेरसमेंट फील ना की जाए, इसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस ना हुआ जाए, बल्कि इसके बारे में बात की जाए. क्योंकि एक बात करने से, एक छोटी सी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने से हम अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं,
अपनी नई नस्ल को मरीज़ बनने से बचा सकते हैं। और यही एक अहम बात है, ये एक जेंडर इशू भी है और ये एक नेशनल कंसर्न का बायस भी है और इंटरनेशनल कंसर्न का भी बायस। आइंदा लेक्चर में हम इसी तरह के एक और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।